Good morning, everybody. Today we are going to read about atmospheric pressure. Okay. What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure, also known as air pressure or barometric pressure, is the pressure within the atmosphere. एटमॉस्फेयर क्या प्रेशर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर हमारा हमारे ऊपर जो प्रेशर डालता है, हमारे ऊपर इतना एयर के लेयर है, वो एयर जो प्रेशर हमारे ऊपर देते हैं उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बैरोमेट्रिक प्रेशर इसे इसलिए बोलते हैं कि बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हुआ है बैरोमेट्रिक प्रेशर। इज द प्रेशर विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द, हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स ऑफ एयर है, वो एयर के लेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर डालते हैं उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसका एसआई यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं पीए, उसका फुल फॉर्म है पास्कल। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज नोन एज पास्कल। पास्कल क्या होता है? व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स पर स्क्वायर मीटर। 1 न्यूटन फोर्स पर स्क्वायर मीटर इज नोन, मतलब एक स्क्वायर मीटर में 1 न्यूटन फोर्स डालने से उसे 1 पास्कल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, उसका ऐसे लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और केजी मीटर टू पर -1 एस टू द पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम। एटीएम है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा सी लेवल से ही नापा जाता है। सी लेवल, इन द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm. However, as the elevation, as we go above the sea level, as our height increases, the sea level, the atmospheric pressure also decreases. Why decreases? We'll cover it after this. Okay. Earth atmosphere pressure at the sea level is approximately 1 atm. 1 atm कितना होता है? कितना पास्कल? 101325 पास्कल। ठीक है, अभी मैं बोला as the height increases the atmospheric pressure decreases. As we have go in the hill or go we start climbing in the mountain, why our earbuds feel like it is being hit by air? Why? Because the atmospheric pressure decreases as we climb the mountain. Why the climbers, why the mountaineers, why they carry oxygen? Because as we go above the hills, above any mountain, the atmosphere goes on thinning by itself. वो पतला होता जा रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर ज्यादा ऊंचाई तक जाने से एटमॉस्फेयर हमारा खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस। सो as you go above the hill, as we go into the height, the atmosphere decreases, as the atmospheric pressure also decreases. Okay, क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे अभी। In most circumstances, atmospheric pressure is closely approximated by the hydrostatic pressure caused the weight of the air above the measurement point. मैं बोला हमारे वो हमें जहाँ भी हुए उसके ऊपर जितना लेयर का एयर है उसका प्रेशर हमारे ऊपर एग्जर्ट होता है, उसे हम आज लाइक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे पानी के ज्यादा अंदर जाओ तो पानी का प्रेशर ज्यादा हमारे ऊपर, ऐसे ही पानी हमें दिख रहा है, एयर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम नहीं जान पा रहे, लेकिन एयर का भी प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, वेट ऑफ द एयर, वेट एयर का वेट बहुत कम है लेकिन फिर भी हमारे ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। जो भी एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं स्पेस में, if any astronaut go to the space, why there is no atmosphere? Why they carry their suit? They wear some suit because there is no atmosphere. Because of the atmospheric pressure, we are alive here. Without any atmosphere, we may not be alive. Okay.
and elevation, as elevation increases there is less overlying atmospheric mass, so atmospheric pressure decreases with increasing elevation. मैं बोला था as we go into the heights the atmosphere will be thin, the atmospheric mass will be less, so that the atmospheric pressure also decreases in increasing with elevation. Okay. Pressure on earth varies with the altitude of the surface. So air pressure on mountain is usually lower, as I have told you, usually lower than the pressure at the sea level. We always take the sea level as the starting point. Sea level pressure is 1 atm. As we go increasing the height, increase to go into the mountains, so the pressure in the mountain usually lower. It gets lower. As you go higher, the pressure lowers. Okay, the pressure varies smoothly from the air surface to the top of the mesosphere. हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप में मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर के स्टार्टिंग तक हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीजेस होता जाता है. ठीक है, ये ग्राफ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्सेस अल्टीट्यूड का. इस ग्राफ में क्या होता है, आज द एलिवेशन, आज इस लाइन में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लिखते हैं, किलो पास्कल बाय पास्कल. किलो पास्कल में ये इसका ये जो ग्राफ में किलो पास्कल से किया गया, 10 किलो पास्कल, 20 किलो पास्कल, 30 किलो पास्कल. और अल्टीट्यूड किससे जा रहा है, 2000 मीटर, 4000 मीटर, 6000 मीटर, 8000 मीटर, 10,000 मीटर. ये कितना एक टेम्परेचर, 15 डिग्री टेम्परेचर, 0% ह्यूमिडिटी. आज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो वेरीज विथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑल्सो, आज वेदर कंडीशन के साथ वो वेरी भी करता है. ठीक है, आज देखो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर 0 मतलब 10, ये 0 है, 0 है. 0 में 0 अल्टीट्यूड मतलब सी लेवल पे यहाँ पर 100 किलो पास्कल उसका एटमॉस्फेयर. आज द इन हाइट इंक्रीजेस, 20,000 आ गया तो 80 हो गया, उसका कितना हो गया, 80 हो गया. आज वी आर गोइंग इनटू द हाइट ऑफ 4,000, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, 60 किलो पास्कल हो गया. 6,000 के हाइट में गए तो कितना हो गया, 50, कम है 50. आज वी को इससे क्या हम समझे, as our altitude increases the atmospheric pressure decreases. Okay, see this is a live example also. This plastic bottle is sealed at approximately 4,300 मीटर. हाइट को देखना है, 4,300 मीटर में ये इसे सील किया गया था. ठीक है, ये है 4,300. ऐसा प्लास्टिक बोतल ऐसे दिख रहा है. and was crossed by the increasing atmospheric pressure recorded at 2,700. ये वाला बोतल, इस बोतल का हालत ऐसे हो गया, कितना हाइट में, 2,700 मीटर में. और ज्यादा हाइट के नीचे आ गया, कितना, 300 मीटर का आ गया, तो 300 मीटर में ये बोतल का हाइट कैसे हो गया, देख 300 मीटर. सो आज गोइंग डाउन, ये बोतल सील हुआ था हाइट पे, वो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस था एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लेस था जब सील हुआ, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ. आज वी गो डाउन फ्रॉम द हाइट, सो द बोतल इज क्रश्ड बिकॉज द एटमॉस्फेयर वहां पर सील्ड हो गया. इसके अंदर का जो एयर है उसका प्रेशर क्या बहुत कम था, यहाँ पर एटमॉस्फेयर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इनर प्रेशर. सो द एटमॉस्फेयर exert a force on this bottle, so the bottle started to cross. As we go down, the atmosphere pressure increases, so the bottle crossed morely. Okay, 12 मीटर.
बैरोमीटर में पहले स्लाइड में बताया था, बैरोमीटर से बैरोमेट्रिक प्रेशर, उसका नाम ऑल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बोलते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। Barometer is a scientific instrument that is used to measure air pressure in certain environment. This is a water barometer। ठीक है, इस बैरोमीटर में यहाँ पर ये वाटर है, कलर्ड वाटर है, बट वाटर है। इसका ये वाला नोजल ये ओपन टू एयर है और सब सील्ड है। ये सी लेवल में इसको वाटर को भरकर सील किया जाता है और इसका मुंह खोला जाता है। When you go increase in some elevation, the atmosphere pressure decreases as you go above. So atmospheric pressure decreases, so the water level increases here. As we go below some height, so the atmospheric pressure increases, so this water level decreases. So by this simple thing they get to know about the air pressure. Pressure tendency can forecast short term changes in the weather forecasting में pressure का जान पाने से, as you know the where the pressure increases or decreases or vary in pressure variation, you got to know the weather, about the weather. Let me say for example, in some area if the heat condition is very high, then temperature is very high. So what happened? The air become heated up. So as the air become heated up, it goes up. So the pressure is decreases, so that the nearby air come to fill the gap. So by this you got to know that the temperature in that area is high. Many measurement of air pressure are used within the surface weather analysis। हमारे सरफेस वेदर मतलब ऐसे हुआ कहाँ पर बारिश होने वाला है, कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ पर लेस टेम्परेचर है, ये सब वेदर एनालिसिस करते हैं, हेल्प करते हैं। सब फाइंड आउट ट्रॉप्स मतलब कहाँ पर ढलान है, कहाँ पर ऊंचाई है, प्रेशर सिस्टम हमारे सी लेवल में कहाँ कहाँ पर प्रेशर है, कैसा प्रेशर है, कहाँ पर बारिश हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। फ्रंटल बाउंड्रीज मतलब कहीं पर बारिश हुआ कि कितना बारिश होगा, कितना टेम्परेचर जाएगा, ये सब हम प्रेशर मैनेजमेंट से, सरफेस वेदर एनालिसिस से पता लगता है। मैं एक दिखाता हूँ आपको लाइव, एक सेकंड दिखाता हूँ। सी दिस इज ए लाइव वेदर फोरकास्ट which has been done by studying the air pressure of each and every location. This is India. You can see in New Delhi it is 27 degree and the pressure is 1018 hectopascal। ठीक है, you can also see anywhere in Allahabad it is 30 degree and the air pressure is 1016 hectopascal। ठीक है, अब ऐसे ये लाइव है टुडे का, आज लाइव है। You can see also the air pressure, the air is flowing like this, the air is here turning, here is air is turning। ठीक है, all these things has been done by barometer। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा होगा एयर प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, मैं बोला था ना बैरोमीटर से प्रेशर नापते हैं, इसलिए इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम देख लिए कि प्रेशर का, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसे कैसे होता है, क्या होता है और उससे क्या क्या हम चीज जानने को मिलते हैं, कैसे नापते हैं हम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन क्या है? इंक इज फिल्ड इन द पेन बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। You are writing in the pen, why the ink inside, ink is the fluid material, ink तो fluid है, वो आपसे पेन से बह क्यों नहीं जाता है? Because the atmospheric pressure exert a force on the ink so that the ink stays inside your pen। Okay,
सेकंड क्या है, वॉल लिजर्ड कैन वॉक ऑन द वॉल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे घर में जो छिपकली चलते हैं वो सीलिंग पे कैसे चलते हैं, छत के ऊपर कैसे चलते हैं, वो गिर क्यों नहीं जाते, उनके ऊपर क्या ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है? ग्रेविटी तो उनके ऊपर भी काम कर रहा है बराबर जितना हमारे ऊपर काम कर रहा है। वो क्यों नहीं गिर रहे, क्योंकि ड्यू टू द एटमोस्फियर, बिकॉज दे आर फीट्स। ये पढ़ो, द फीट ऑफ द लीजर्स एक्ट लाइक ए सक्शन पैड। वो सक्शन पैड करते हैं, मतलब उसका फीट वहां पर एक वैक्यूम का प्रेशर क्रिएट करता है जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चिपक के रहता है। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम का प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसका पैर को प्रेशर देते हैं। The atmospheric pressure put in the feet of the lizard so that the lizard gets stuck in the ceiling. Okay, the pressure inside the feet is reduced as I have told you, and more pressure applied outside which enable the lizard to walk on the wall easily. Got it? We can drink the soft drinks easily with a straw. इसे हम जो पीते हैं स्ट्रॉ से, एक स्ट्रॉ अगर डालेंगे हम सॉफ्ट ड्रिंक पे डालकर उसको खींचेंगे तो पहले तो वो स्ट्रॉ के अंदर जो एयर था वो अपने मुंह में जाएगा, जाएगा कि नहीं? देन व्हाट हैपन इन दैट straw, the air is vacant, so air pressure increases, which is less than the atmospheric pressure, so that the atmospheric pressure exert a force on your soft drink which compelled your soft drink to go through that straw. वी कैन ड्रिंक, ऐसे हम खींचते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट होता है। किस पे एक्सर्ट होता है? सॉफ्ट ड्रिंक पर। सॉफ्ट ड्रिंक गोज थ्रू दिस। वी कैन ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक यूजिंग a straw. We basically suck some air from the straw due to the pressure inside the straw is decreased. प्रेशर डिक्रीज हो गया as compared to outside, hence the outside press air pushes the drink into the straw. समझ में आ गया? ऐसे हम, ये है सब एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये सब चीज हम कर सकते हैं। हम पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अभी हम जिंदा है। इफ यू गो इनटू द स्पेस यू आर अनेबल टू सस्टेन फॉर मोर देन 1 to 3 seconds. Your body will start exploding because if there is no atmospheric pressure, your blood pressure will increases. Okay, this is all about the atmospheric pressure. Thank you everybody. Please like, share and subscribe. Do comment if you want any topic to be covered by me. And do search Navodaya 2012. Thank you. Have a good day.